Good afternoon, everyone. I'm Good Shubham afternoon. Kumar, Good and Good afternoon, afternoon, sir. sir. Good afternoon. from Good afternoon. I come from Kumri village, Kachar district, Bihar, and I have done my schooling from my village for the like primary education. Then from Patna, and then I did my matriculation from Vidyavihar Residential School, Purnia, Bihar, and I did 12th from Chinmay Vidyalaya in 2014, and that year only I got selected into IIT Bombay, and I graduated in 2018. And from January, from the last semester, January 2nd, 2018, I started my preparation. So actually, in IIT Bombay, they allowed me to go out go out of the college because of the policy that if someone is able to complete all the credits, all the courses beforehand, so we were allowed. So I completed my graduation in the seventh semester itself, and I came to Delhi on 2nd Jan. And that time I did not decide my option per se, and I started my preparation keeping the focus on the prelims 2018, and the entire journey from IIT to civils. Some many people they ask, ki, why you chose civil career in civil services after doing IIT. So it is like this. When I was a child, I always aspired to become an officer because of many experiences that I had in my childhood, and I've seen many people coming to my father to for some help. And then my father told me, "Ki if you become an IS officer, you would be able to help a lot of people, and you will get that platform." So it was there in my mind, but I was very good in physics, chemistry, math in my school days. So when I was in ninth and 10th, that time I realized that if I go to IIT, if I go to any good college, that would be good for me. So then I started my preparation for JEE in 11th, 12th. So this is the story of my life. Like if I decide something, then I give 100% to it. I started my JEE preparation along with my schooling, and then I got decent marks in 12th also, almost 96%, and I got into IIT Bombay as well. And in IIT Bombay, I explored different areas. And for example, I worked for a company as an intern, and I did not like it. And that day, I decided after my second year that I won't join any corporate as such. Then in my third year, I tried my luck in research. I was selected in uh, Purdue Research Internship, that is Purdue University in the United States. For 2 months, I went to America and I did my research. It was quite good. But the experiences there which I had in US, it prompted me to build a career in civil services, because firstly, I saw a lot of difference that I can make to the society, which it is not available in the developed countries. So I saw an opportunity, and plus when I was in IIT Bombay, I was at the leadership roles in my hostel. So I was cultural head, and under my leadership with the team that I had, we were able to we were at the bottom in culturals, but we were under me. Our hostel got first position in culturals among 15 hostels. So from there, I learned about myself also, that whenever I'm working for others, I'm getting a lot of satisfaction. So in my final year, after all these experiences, I decided. I spoke with seniors. I spoke with who are into preparation, who have already cleared this examination, who are into services. And then I decided I was very sure what all challenges that I will face, and what all opportunities are there. After that, I took an intelligent decision that I will build a career in civil services. And with that motivation, with that mindset, I started my preparation. So January 2018 I started. So उस समय I was not very clear कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. There's a lot of confusion. So it is very obvious that for the first 5-6 months you'll have that kind of confusion. You'll have that kind of underconfidence.
so it's very normal. Usme I used to watch a lot of toppers talk. I used to talk to people, and then I found few common strategy among the toppers. They always have a good plan. They always start answer writing beforehand. They stick to few sources, and they revise a lot. So these kind of things I try to inculcate. So I will just go through my entire journey. Initially, prepared for 2018, and that year I took civil engineering as optional because I did not had any choice per se, because I was not aware about social sciences optional. और बहुत कम time था, from the day when I started preparation, और फिर जो यूपीएससी के जो नोटिफिकेशन के थ्रू जो फॉर्म भरते हैं, the time was very less. So मैं सोचा कि सिविल इंजीनियरिंग ही रखते हैं, because I was decent in that subject in my college. And fortunately that year I did not clear prelims, because अगर मैं prelims clear होता तो फिर I could have devoted much time in civil engineering. फिर later I came to know that I'm not very good in calculation. I did a lot of mistakes while solving problems. So, and with time I lose interest in civil engineering as well. थोड़ा थोड़ा interest कम हुआ. So after prelims, when I was very sure that I'm not clearing, I got 80 marks with 5 months of preparation. I was happy also कि 5-6 क्वेश्चन और सही करेंगे अगले साल तो प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा. सो आई एनालाइज माय स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. उस दिन मैं जब प्रीलिम्स हुआ था तो मैं आराम से बैठा रूम पे, फिर देखा कि आई शुड गिव अ सेकंड थॉट टू माय ऑप्शनल, बिकॉज मेनी पीपल हैव सजेस्टेड कि बिकॉज civil engineering is an engineering subject and it becomes difficult over a period of time to score. तो मैं अपना strength weakness देखा इसमें. फिर people ask how to decide optional. So I will share my strategy how I decided my optional. So I watched few videos on YouTube. उसमें लोग suggest किए थे कैसे select करना है. इसमें मैं क्या किया कि I spoke with few seniors. That year Ashima Mittal, she actually got rank 12, and she was from also IIT Bombay civil engineering. So I went to topper talks and 2 मिनट मैम से बात करने का मौका मिला. So मैम से पूछा कि मैम, even though you were good in civil engineering, why you chose anthropology? So मैम told कि no, it becomes difficult when you take the horizon of 2-3 years. It becomes difficult to have that same amount of interest. So फिर मुझे भी थोड़ा realization हुआ, and then I compared all the social sciences that I could have taken. I compared the syllabus, और 3-4 सोशल साइंस ऑप्शनल्स जो है सामने मुझे आया कि ज्योग्राफी, PSIR और एंथ्रोपोलॉजी, ये सब मैं ले सकता हूँ. सो आई ऑल्सो सजेस्ट पीपल कि डू नॉट सेलेक्ट ऑप्शनल इन हरी. बहुत पहले डिसाइड ना करें, बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी के बारे में मैं आफ्टर प्रीलिम्स 2018 में जाना कि देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी. एंड इंजीनियरिंग में जब रहते हैं तो बाहर के दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं होता है सच. एंड जब वो मतलब उस इंफॉर्मेशन गैप थोड़ा फिल हुआ, बाकी चीज़ों के बारे में जाना, एंड आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट जनरल स्टडीज पेपर्स, देन आई केम टू नो दैट यस आई हैव गुड answer writing skills, and I tend to remember things if it is taught in a story format, and उसको जल्दी भूलते नहीं है. Whereas civil engineering में ऐसा हो रहा था कि after 6 months without practice I was forgetting things. तो इस वजह से and I analyzed many more things. I devoted around 45 days to decide my optional. इसमें मैं सचिन गुप्ता सर के वीडियोस कुछ देखा, वो लिंक वगैरह शेयर किए थे अपने आर्टिकल्स में. इंसाइट पे उन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था. सो ये सारे चीज को मैं एनालाइज किया. आई रेड फ्यू बुक्स ऑल्सो, थोड़ा मार्केट से खरीद के, थोड़ा गूगल करके. देन आई सॉ द सिलेबस, सारा चीज कंपैरिजन करके देन आई डिसाइडेड. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेनेवर यू आर डिसाइडिंग ऑप्शनल, वो आपके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हो. एंड देयर इज मतलब गाइडेंस, देयर शुड बी गाइडेंस अवेलेबल ऑल्सो. वहाँ पे रिसोर्सेस अवेलेबल हो, गाइडेंस अवेलेबल हो. एंड ये जो है वो इन जनरल डिसेंट परफॉर्म भी कर रहा हो, because it is at the end of the day it is important to clear the examination. So मैंने देखा कि जो एंथ्रोपोलॉजी है वो एग्जामिनेशन में भी डिसेंट परफॉर्म करता है. इवन इंजीनियर्स they take anthro and they perform well. So after analyzing everything I decided to take optional, and I decided to take coaching. और फिर वैद सर से बात हुई,
एंड बहुत अच्छे से नहीं हो पाया था, जैसे सर सजेस्ट किए कि 100% एंथ्रोपोलॉजी को डिवोट करो. आई वाज नॉट एबल टू डिवोट 100% बिकॉज ऑफ मेनी अदर रीजंस. आई वाज नॉट एबल टू फोकस दैट वेल आफ्टर 2018 प्रीलिम्स. 6 घंटे से ज़्यादा मैं पढ़ाई नहीं कर पाया था टिल दिसंबर 2018. बट आई थिंक थोड़ा एक फॉर्मेट था कि हाँ एंथ्रोपोलॉजी पहले करना है, फिर थोड़ा टेस्ट सीरीज लिखना है. तो ये अप्रोच के साथ जो है मैं आगे आगे बढ़ा. एंड classroom mein I had good notes. So whatever sir was teaching, I was having notes. But apart from that, what I followed was that year Sachin Gupta sir's notes was very famous. वो available था. So I referred those notes, and it was based on sir's material. So but whatever sir was giving, जो वैद sir का जो material होता है, I found it difficult to cover. मैं cover नहीं कर पाया, and मेरे पास time कम था और उतने अच्छे से मैं पढ़ नहीं पा रहा था उस टाइम. फिर जब जनवरी 2019 आया, देन द आइडिया स्ट्रक कि अगर ऐसे ही पढ़ता रहा तो फिर इस बार प्रीलिम्स भी होगा नहीं, फिर मेंस का तो सोचना ही नहीं है. सो आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन इन अ फ्रेश वे. पूरे एक नए सिरे से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया. और थिंग दैट आई वांट टू से टू ऑल ऑफ यू दैट जब भी आप मतलब जब जागो तब सवेरा टाइप का, कि अगर आप कुछ अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम्स हो गए प्रिपरेशन में, even after that when you start your preparation just 5 months before prelims, then also with clear strategy you can clear it. Because in 2019 I was able to get to 90th rank that year, and I scored pretty well in GS. I got 428 that year in GS, all the GS 1 2 3 4 combined. I got 132 in essay. I got 263 in optional anthropology. Even though I was not able to read 70% of the anthropology before prelims. Prelims के बाद ही 70% कवर किया था. Prelims से पहले 30% ही कवर हो पाया था. Then after that I was able to score 263. And in 2020 I focused more on anthropology, और उसमें मैं अच्छे से एक और किताब पढ़ी. I will come to sources. और फिर अच्छे से तैयारी किया, and I got 170 and 150. Paper 1 170, paper 2 150. Even though I left 2 questions in paper 2, I attempted only 230 marks. I got 150 in paper 2, or total score is 320. So even though the paper was tough, remember this, it is tough for everyone, and the marking would be would be done accordingly. So ये सारा चीज था, and I was happy after my performance in mains 2020. So and this year in GS also I got decent marks, 424. But the biggest jump was in anthropology, and 60 marks, almost 60 marks jump in anthro, and 30 marks jump in interview. Coming to the sources which I followed my own notes, classroom few notes that I was having. Then for sociocultural anthropology, I read such book, In Search of Ourselves. Or then I read Sachin Gupta sir's notes. And after prelims, I read before prelims I attempted test also. I joined Bala sir's test series. L2A's coaching institute is there. I joined the test series. I attempted sir's test as well. So prelims se pehle I attempted 3-4 tests. So 3 tests I was able to attempt. So only those topics like initial topics, the basic ones, 1 2 3 4 5 6 till 6. Topic 6 in paper 1 I was able to cover. So like almost it is 30% of the syllabus, theories and the basic things. So ये कवर कर पाया था, and I was able to go through the syllabus कि क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और क्लास में जो पढ़ाई हुआ था I was able to go through that before prelims. And I was able to write answers in a decent way. अगर मुझे थोड़ा सा पता है तो I was able to frame my answers, कि मैं पेजेस ऐसे मैं लिख देता था एक बेसिक कंसेप्ट के साथ. Even though the answers it was not that refined, या उसमें उतना value addition नहीं था उस time. So after prelims I read Sachin Gupta sir notes, and then Varnit Negi sir also shared. After 1 year the result came, and Varnit Negi sir he got rank 30, and you can find his notes on his blog. I referred those notes. थोड़ा हैंड रिटन है, थोड़ा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, बट थोड़ा थोड़ा रेड करते करते जो भी मुझे जहाँ पे प्रॉब्लम्स लगा. फॉर थ्योरी आई वाज नॉट हैविंग नोट्स, सो आई रेफर्ड दोज नोट्स. वन थिंग आई वांट टू से कि आई नेवर मेड माय ओन नोट्स फॉर एंथ्रोपोलॉजी. उतना ज्यादा नोट्स नहीं बनाया. आई जस्ट
ensure that I have sufficient notes, जो भी toppers के जो भी किताब से syllabus wise and in question answer format. So these things worked for me. फिर that year I read simplified anthropology as well, because there was lot of confusion to read paper 2 from Varnit Negi sir's notes or Sachin Gupta sir's notes. So मैं क्या कि paper 2 के लिए that year I read simplified anthropology, 180 pages के paper 2 के notes थे. And apart from all this, लोग कहते हैं कितना कम पढ़ने से कैसे हो गया ये सब. So what I did, I used to follow sir used to share a lot of articles on WhatsApp group. जो भी हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप था उस पे जो भी करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स हैं, जो भी रिसर्च के आर्टिकल्स हैं, सर यूज्ड टू शेयर, और पूरे 1 साल शेयर करते थे. सो मैं उसको फॉलो नहीं करता था, लेकिन एंड में मतलब आफ्टर लाइक आई क्लियर्ड प्रीलिम्स, 3-4 ऑफ अस इन माय ग्रुप, पीयर ग्रुप, वी सैट टुगेदर और पूरे 1 साल का जो भी आर्टिकल सर शेयर किए सारा एक दिन में बैठ के ऑलमोस्ट 15 आवर्स डिवोट करके सारा के नोट्स बना लिए. एंड देन उसको लिंक करते थे सिलेबस से कि वेयर आई कैन यूज दैट. So what it made a difference कि सबको I think everyone is thorough with the syllabus, उनको पता होता है कि कहाँ से पढ़ना है. But value addition, no, there is a difference when you see my answers and compare my answers with the other people, कि उसमें जो value addition वाली चीजें हैं that comes from whatever sir was sharing in WhatsApp group. And plus whenever I used to feel कि there is a lack in my knowledge, I used to Google those topics and I used to read certain articles और उससे फिर नोट्स बना लेता था. और ये ऑलमोस्ट 50-60 ऐसे आई हैड दैट पॉइंटर्स, एंड आई विल शेयर इट इन माय टेलीग्राम ग्रुप, एंड यू गाइस कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल. इट इज शुभम कुमार स्ट्रेटजी एंड नोट्स फॉर यूपीएससी सीएससी, एंड इट इज द लिंक इज शुभम KR_IS. सो यहाँ पे मैं अपने जो भी मैं ये जगह से जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ये मैं शेयर कर दूंगा. बट रिमेंबर दिस कि ये भी जो भी मैं बनाया हूँ ये पुराना हो चुका है, इट इज लाइक 1 year ओल्ड. आपको ये करना होगा कि जो भी ये शेयर कर रहे हैं, सर शेयर कर रहे हैं या आप जो गूगल कर रहे हैं, वहां से आप खुद के नोट्स बनाए, करंट एग्जांपल्स के नोट्स बनाए. दैट विल मेक योर आंसर यूनिक. आई ऑलवेज ट्राई टू मेक माई आंसर यूनिक. सो ये काम मैं 2019 में भी किया. एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम आई वॉज नॉट एबल टू रीड आर्कियोलॉजी एट ऑल. 5 दिन का गैप मिला था, एंड इन दैट गैप आई थॉट ऑफ रीडिंग आर्कियोलॉजी. वन एंटायर डे आई डिवोटेड आर्कियोलॉजी और फिर कुछ समझ में आया नहीं. एंड आई थॉट इट्स बेटर टू डिवोट टाइम ऑन व्हाटएवर आई हैव रेड सो फार. सो उस समय थोड़ा फीवर भी हो गया था 2019 में in between of the examination. So 2 days I was not able to read, and 1 day I devoted to archaeology but because the syllabus of anthropology is such that if you have that notes you can revise everything in 2-3 days. So मैं 2-3 दिन में पूरा रिवाइज किया, and that year I did not attempt any archaeology questions ऐसे आए थे कि आर्कियोलॉजी को मैं स्किप करते हुए सारे 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, and the question paper was pretty easy that year, and I was able to attempt that. But after my result in 2019 I realized that I have to work for optional. So मैं optional के लिए I read one new book, अक्षय जैन सर का Demystify Anthropology आया. So the thing that was running in market that this book is very it's very concise, इसमें ज़्यादा content नहीं है. But I know this कि for entire UPSC journey सारे एस्पिरेंट्स को, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को लगता है कि बहुत कम कंटेंट है, बहुत ही है. बट द फोकस आई थिंक पीपल फॉरगेट कि आपको कम ही याद करके उसको रिप्रोड्यूस ज्यादा से ज्यादा करना होता है. सो मैं सर का ही बुक को अच्छे से याद किया और उसमें जो भी मेरे कंटेंट थे मैं उसको ऐड किया. फ्यू एग्जाम्पल आई चेंज कि सारे लोग एक ही बुक पढ़ रहे हैं, तो आई यूज टू यूज माई ओन एग्जाम्पल्स. और आई वॉज प्रिटी श्योर कि सर अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर भी कर रहे हैं तो बहुत कम ही लोग उसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे. तो उस वजह से मुझे पता है कि ज्यादा लोग उसको लिखेंगे नहीं, या अगर पढ़ भी लेंगे तो बहुत कम लोग जाके फाइनल एग्जाम में लिख पाएंगे. तो ये सब की वजह से मैं ये कोशिश किया कि मेरा सोर्सेस लिमिटेड हो. दीज वर माई सोर्सेस. आई थिंक आई listed all my sources, and for few topics in paper 2 I referred Mandap sir का rank 22 I think he got last year. So उनका भी blog पे he shared his notes. So कुछ टॉपिक पेपर 2 के लिए मैं वहां से थोड़ा रेफर किया. उनका जो कंटेंट है इट इज वेरी मच, बहुत ज्यादा वो लिखे हुए हैं. सो मैं सोचा कि इतना जो मुझसे याद हो सकता है, आई फॉलोड माय ओन स्ट्रेटजी. आई थिंक सर हैज आल्सो सेड दैट
अगर आपके पास 3-4 थिंकर्स हो जाते हैं in an answer, then it is sufficient. You don't have to remember 10 thinkers for a single question. So and my entire preparation was question answer format, always question answer format, and I followed that. और 3-4 thinkers अगर हो जा रहा है, max to max 3 thinkers, so I used to stop there. So अगर thinkers की कमी पड़ रही है तो I referred few thinkers from Mandap sir's notes. So these were my sources. I did not read P Nath or anything, because I think it's important to cover the syllabus. अगर मेरा syllabus cover हो रहा है तो मैं जो है I was comfortable. जरूरत नहीं पड़ा, अगर मुझे जरूरत पड़ता तो I could have referred P Nath, but I would suggest not to read any book line by line. It is more important to cover the syllabus, and the best source is to refer previous year question. And even if the question comes out of syllabus, you can use the peripheral knowledge to attempt those questions. For example, in 2020, one question was there on some site was there in Israel near to Middle East. Based on that, a Neolithic or Mesolithic site was there. A question was there. I'm not able to recall the exact site name. तो उस पे क्वेश्चन था, और that was mentioned as example in Akshay Jan's book. Neolithic site में वो example की तरह वो mention था. So when I came to know कि ये थोड़ा Mesolithic और Neolithic के बीच वाला site है, थोड़ा Mesolithic भी cover हो रहा है, थोड़ा Neolithic भी ज़्यादा cover हो रहा है. So I wrote entire 2 page, just knowing the fact that the site belongs to this period. और इसी से पूरा आर्कियोलॉजी का क्या टूल्स यूज हुए होंगे, कहाँ पे साइट है, क्या क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, तो वो पूरा रिलेट हो गया और एक बहुत अच्छा आंसर जो है वो फ्रेम हो जाता है. सो इसी तरीके से whenever the question comes little bit out of syllabus, little bit which is not that you have read, you can always use your peripheral knowledge, you can always use your anthropology understanding to write the answers. और वही किया, और कुछ क्वेश्चंस जो entirely out of syllabus था, I did not attempt those. So my focus was, first I covered the entire syllabus, और जो भी books वगैरह मैं refer किया, जैसे I tore down the अक्षर जैन book, मैं उसको book को फाड़ दिया, मैं syllabus wise उसको staple किया, एंड खुद के जो नोट्स थे और या सिंप्लीफाइड एंथ्रोपोलॉजी के कुछ पेजेस मुझे इंपॉर्टेंट लगे, या नेगी सर के नोट्स के कुछ इंपॉर्टेंट लगे, उसको मैं, और या सचिन सर के नोट्स के कुछ पेजेस इंपॉर्टेंट लगे, उसको मैं स्टेपल कर लिया सिलेबस वाइज. और ऐसे मेरे पास जो है वो इतना मोटा जो है वो मेरे पास वो एंथ्रोपोलॉजी का कंटेंट हो गया. उसके अलावा मैं कुछ और रेफर नहीं करता था. तो ये एक बार हो जाने के बाद, इट टुक मी ऑलमोस्ट इन 2020 आफ्टर this result, in between prelims and mains, it took me around 25 days to मतलब compile everything syllabus wise. थोड़ा value addition करके सारा चीज करके मुझे 25 दिन लगे, और I used to read around 10 hours every day. So ये करने के बाद, and I used to try to remember those things also. बट जनरली जो लास्ट मंथ होता है बिफोर मेंस, उसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें याद की. पहले से थोड़ा थोड़ा कोशिश करता था एक बेस बन जाए. और फिर व्हाट आई ट्राइड दिस ईयर इज दैट आई इंस्टेड ऑफ गिविंग टेस्ट, मैं उसको ये करता था, स्क्रिबल करता था अपने पेजेस पे. तो क्वेश्चन मैं देखा, टॉपिक्स देखे, और मैं उसको स्क्रिबल करता था अपने पेजेस पे रफ की तरह, या बोर्ड पे मैं स्क्रिबल करता था. और secondly, what I tried new this time, between the break, because the mains was on 9th or 7th or 8th, 9th I think. जो almost 15 days prior to mains, generally आप GS की तैयारी करते हो. So after 15 December I did not read any anthropology, और वो एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है 25 days का. So that in that 5 days break between 10th to 15th January, and I think 16th को पेपर था, so I attempted 2 mock test. जो 12th Jan I attempted 2 mock test. So इसमें मैंने क्या किया कि मैं जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 का पेपर जो है मैं लाइब्रेरी में बैठ के लिखा. सो एक्चुअली व्हाट इट हेल्प इज कि एक थोड़ा फ्लो आ गया और स्पीड बढ़ गया, कैसे अटेम्प्ट करना वो सब बढ़ गया, क्योंकि एक गैप हो जाता है. तो आई विल रिकमेंड एवरीवन कि इन दोज ब्रेक्स, बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी सिलेबस इज नॉट दैट मच एंड यू कैन रिवाइज दोज इन 3-4 days. सो एक दिन आप जो है मॉक पेपर लिख लें, प्रेफरेबली थोड़ा पहले, जैसे 5 दिन का ब्रेक में 2nd या 3rd डे आप लिख लें. उससे जो है आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा. और चूंकि मैं टेस्ट लिखने के बारे में सोच रहा था, तो मैं 1 से 1.5 दिन में सारा एक बार गो थ्रू भी कर लिया.
25 दिन का जो गैप होने का जो गो थ्रू किया, मैं बहुत फास्ट गो थ्रू किया, और फिर एक सेकंड रिवीजन। सो विद इन दैट 5 days आई वाज एबल टू रिवाइज ट्वाइस और थ्राइस, और फिर एक दिन एग्जाम से पहले भी। सो दैट विल हेल्प यू टू सेव टाइम एंड टू विल हेल्प यू टू राइट और फ्रेम आंसर्स इन द फाइनल एग्जाम, और आप जो है टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर पाएंगे। जनरली टाइम मैनेजमेंट का इशू आपको होगा, एंड इट हैपेंड विथ मी आल्सो। सो अगर आप ये चीजें करते हैं तो यू विल सी कि आपका टाइम मैनेजमेंट थोड़ा बेटर होगा। सो इसके अलावा नो इफ आई मस्ट टेल यू कि मेरा टाइम मैनेजमेंट कैसा होता था इन 2019। इन द लास्ट 20 मिनट्स आई जनरली मेरा क्या होता था कि मैं 50 मिनट दे देता था एक क्वेश्चन को 50 मार्क्स कंप्लीट करने के लिए। सो मैं ऐसे करता था कि क्वेश्चन नंबर 1 and 5 इज कंपल्सरी। मैं आई यूज्ड टू गिव 5 minutes टू सेलेक्ट which 3 questions I have to attempt. फिर सिलेक्शन के बाद I used to attempt any question apart from 1 and 5. कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था और उसमें मुझे लग जाते थे ऑलमोस्ट 50 मिनट, 2019 का मैं बता रहा हूँ। फिर दूसरा क्वेश्चन करते करते 1.5 घंटे हो जाते थे, तो ऑलमोस्ट 100 मार्क्स इन 1.5 आवर्स। तो मुझे लगा कि अब तो ये गेम गया। फिर मैं आधे घंटे में एक और क्वेश्चन किया, फिर आधे घंटे में एक और किया। सो ऑलमोस्ट 2 hours 20 minutes में मैं आई कंप्लीटेड यू नो आई कंप्लीटेड अराउंड मोर देन 150, नॉट मोर देन 150 अराउंड। सो इसके बाद फिर लास्ट के ऐसा हुआ कि लास्ट के 20 मिनट्स में आई लेफ्ट विथ इंटायर क्वेश्चन नंबर 5 और एक 20 मार्कर। So I was not able to attempt question well, but even after that I got 131, 132 that year. And थोड़ा ये है कि the quality of answers in optional also matters. So अगर आप quality अच्छा लिखते हैं तो you will get good marks. और second paper में also in last 20 minutes I attempted entire question number 5, that is 50 marks. So almost 70 plus 50, 120 marks मैं बहुत hurriedly attempt किया. So that I tried to change in this attempt. इसमें मैं थोड़ा टाइम एलोकेशन अच्छे से किया, एंड लास्ट इवन आफ्टर दैट लास्ट हाफ एन आवर में 50 मार्क्स का था। दैट इज आई थिंक दैट इज गुड। अगर आप लास्ट के आधे घंटे में 50 मार्क्स का एक क्वेश्चन नंबर 5 मैं लास्ट में अटेम्प्ट करता था, इंटायर क्वेश्चन नंबर 5 वाज लेफ्ट इन द लास्ट हाफ एन आवर फॉर पेपर 1 आल्सो एंड फॉर पेपर 2 आल्सो। सो मेरा अटेम्प्ट करने का तरीका ऐसा होता था, कोई एक रैंडम कोई भी क्वेश्चन जो सेलेक्ट किया उसको सबसे पहले करता था, फिर सेकंड क्वेश्चन भी मैं एक 50 मार्क्स का जो है वो जो सेलेक्ट किया था वो करता था, थर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन में 1 करता था, फिर फोर्थ क्वेश्चन में जो सेलेक्ट किया हूँ अपना वो करता था, फिफ्थ क्वेश्चन जो है लास्ट में क्वेश्चन में 5 करता था। क्योंकि जनरली जो 10 मार्कर क्वेश्चन है, इफ यू अटेम्प्ट इनिशियली इट विल टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम। सो मैंने ऐसा किया कि पहले जो 3 क्वेश्चन हैं 20, 15 और 10 के होते हैं, आई थिंक 20, 15, 15 ऐसे होते हैं, 20, 15, 15 3 क्वेश्चंस होते हैं। सो इसको मैं पहले अटेम्प्ट करता था। इन क्वेश्चन नंबर 1 को मैं थोड़ा पहले इसलिए करता था क्योंकि तीसरे नंबर पे करता था, क्योंकि एग्जामिनर विल स्टार्ट चेकिंग योर आंसर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। सो वहां पे एक अच्छा लिखना जरूरी हो जाता है, एंड आई यूज्ड टू डिवोट मोर देन 7 मिनट्स या 8-9 मिनट्स देता था क्वेश्चन नंबर 1A और 1B में, क्योंकि वो पेपर आपका जस्ट स्टार्ट हो रहा है। सो वहां थोड़ा ज्यादा टाइम देता था, थोड़ा अच्छे से लिखता था। और this year, in paper 2, I was not aware about question number 1A and 1C. So many people they try to bluff in question number 1A. I will suggest कि जब आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है, please do not bluff in your optional, खास करके स्टार्ट में। So I left question 1A and 1C entirely. और आई थिंक दिस हैज बेनिफिटेड मी। अगर मैं कुछ रैंडम लिखता, वो ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें आप ब्लफ नहीं कर सकते। एक थिंकर के बारे में पूछा था और मुझे उसमें ज्यादा आइडिया नहीं था, तो मैं 1A इंटायरली छोड़ा और 1C में एक थोड़ा सा लिखा। सो आई थिंक you can try this method because many people they get negative marks also अगर वो बहुत ज्यादा ब्लफ रैंडम ब्लफ करते हैं तो। So I followed this this approach of attempting paper। और सर कभी कभी बोलते हैं कि यूज पेंसिल फॉर मेकिंग डायग्राम्स। आई नेवर गॉट दैट टाइम टू मेक यूज पेंसिल। मैं एक ही पेन से जो है वो करता था। अपार्ट फ्रॉम दैट आई यूज्ड टू ड्रॉ अ लॉट ऑफ डायग्राम्स। मैं डायग्राम्स बनाते थे, जो भी बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं, जो भी नोट्स पढ़ रहे हैं, वहाँ पे डायग्राम्स रहेंगे। सो आई यूज्ड टू मेक डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स। सो इट सर्व्स 2 पर्पस। फर्स्टली इट विल मेक योर कॉपी यूनिक और थोड़ा वैल्यू एडिशन जैसा लगता है कि एक यूनिकनेस आता है। और सेकेंडली
ये पेजेस भरने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता 50 पेजेस लिखने का। सो डायग्राम्स वगैरह बना के वो अच्छा भी लगता है और पेजेस भर भी जाते हैं। सो आई यूज टू ट्राई दैट। अपार्ट फ्रॉम दिस आई ऑलवेज यूज टू राइट इन पॉइंट वाइज। बहुत सारे टॉपर्स पैराग्राफ में लिखते हैं, बट आई फॉलो जीएस स्ट्रैटेजी, पॉइंट वाइज लिखते थे। बट यहाँ पे अंतर क्या आया कि माई पॉइंट यूज टू बी लिटिल बिट लॉन्गर, थोड़ा 4 लाइन का पॉइंट्स हो जाते थे। ऐसा नहीं कि जीएस में जो 2 लाइन के पॉइंट्स हैं वैसे नहीं होते थे। सो सर का जो स्ट्रैटेजी है, सर का स्ट्रैटेजी का यू राइट डिस्क्रिप्टिव, थोड़ा पैराग्राफ में लिखो और अच्छे से एग्जांपल दो। सो मैं क्या किया कि मैं थोड़ा सर का स्ट्रैटेजी और खुद का स्ट्रैटेजी को कंबाइन किया बेस्ड ऑन माई स्ट्रेंथ इज राइटिंग आंसर्स इन पॉइंट्स, और जीएस में विदाउट मच एफर्ट जनरली मैं अच्छे से लिख लेता था। सो आई यूज दैट अप्रोच प्लस आई कंबाइन सर्स अप्रोच, और उसमें करके मैं अपना एक अप्रोच लेके आया कि मैं पॉइंट वाइज भी लिखूंगा, थोड़ा पॉइंट को बड़ा कर दूंगा, और मैं सब हेडिंग भी जो है आंसर में डालता था। आई यूज्ड टू ट्राई टू डिवाइड द आंसर्स into two subheading for 10 मार्कर, 15 मार्कर के लिए 3, 20 मार्कर के लिए 4, उस टाइप से थोड़ा डिवाइड करके और फिर पॉइंट वाइज जो है लिखने की कोशिश करता था। अगर पॉसिबल नहीं होता तो फिर शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखता था। मतलब माय पैराग्राफ्स जो पॉइंट्स होते थे वो 4 लाइन या 4.5 लाइन से ज्यादा, मैक्स टू मैक्स 4.5 लाइन के होते थे। पैराग्राफ जो है वो फटाफट चेंज भी करता था। और आई ऑलवेज स्टार्ट माई आंसर विथ इंट्रोडक्शन, एंड आई ऑलवेज यूज टू कंक्लूड by conclusion, क्योंकि it will give the examiner a sense of completion कि आपने complete अच्छे से किया है। And for subheading I used to use the words from the question, उससे फिर subheading वगैरह बनाते था। और because I always read anthropology in question as a format, so it used to be little bit easy for me to frame my answers in examination। बट काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसको आप जो है आप नहीं पढ़े होंगे, एकदम नया होगा जिसको आप नहीं पढ़े होंगे, और उसका कुछ एक बेसिक बस आपको पता होगा। सो यहाँ पे आंसर राइटिंग जो आप पहले किए हैं वो हेल्प आएगा कि यू विल बी एबल टू फ्रेम आंसर्स देन एंड देयर। सो इसके लिए क्या करना है कि आपको माइंड को बहुत रिजिड नहीं रखना है। समटाइम्स व्हेन वी रीड क्वेश्चन, रीड एनी सब्जेक्ट इन क्वेश्चन एज अ फॉर्मेट, आवर माइंड बिकम रिजिड कि ऐसे ही लिखना है, एग्जैक्टली ये वर्ड्स लिखना है, एग्जैक्टली ये लाइन लिखना है। मैं ऐसा कभी फॉलो नहीं किया। मैं अपना थोड़ा फ्लूइड रहता था अपने अप्रोच में, और अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन आई यूज्ड टू फ्रेम माय रिस्पॉन्स, फ्रेम माय आंसर। और वट एवर आई हैव रेड, ना पीछे जो रेड पढ़ा है उसको एज अ बेस मानता था। इवन दो आई हैव रेड इन क्वेश्चन एज अ फॉर्मेट, मैं उसको बेस मानता था, और इतनी बार पढ़ लिया था कि आई वाज एबल टू इंटरलिंक। सो आई थिंक दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरलिंकिंग ऑफ टॉपिक्स। So whatever I have read in paper 1, I used to interlink with paper 2. You will find some common topics कि यहाँ पे जब सोसाइटी के क्वेश्चंस है, you can always use Indian examples in paper 1, और फिर paper 2 में you can use international examples. You can use the thinkers that you have read in paper 1 in paper 2. I am not able to recall exactly, लेकिन मैं यूज करता था। पेपर 2 में पेपर 1 के थिंकर्स को यूज करता था, पेपर 1 में पेपर 2 के थिंकर्स, इंडियन थिंकर्स को भी मैं जो है वहां डालता था। सो दैट इज द थिंग दैट आई मतलब यूज, और थोड़ा डिफरेंटली लोगों से करने की कोशिश की। और जब ये आंसर्स आई थिंक आई कवर्ड द ब्रॉड टॉपिक, ब्रॉड एरिया के हाउ टू राइट आंसर्स या कैसे आंसर्स को यूनिक बनाए। सो इफ आई गो थ्रू, मतलब अभी थोड़ा पॉइंट वाइज अगर बोलूँ, सो पहला कि मैं पॉइंट वाइज लिखता था, दूसरा कि फर्स्ट आई यूज्ड टू राइट पॉइंट वाइज, आई यूज्ड टू ट्राई टू राइट पॉइंट वाइज, आई यूज्ड टू डिवाइड द क्वेश्चंस इनटू पार्ट्स, आई यूज्ड टू use the sources, whatever the news that sir used to share on WhatsApp, I used to Google a lot, and I used to use new examples. जो भी आप कहीं से भी पढ़ेंगे, examples पुराने हो जाते हैं, and people will use those examples. So मैं I used to Google things, and I used to frame my own case studies, I used to frame my own examples, और फिर उसको मैं अपने आंसर्स में यूज करता था। जैसे अक्षर जैन सर का भी बुक मैंने पढ़ा, तो वहां पे भी मैं एग्जाम्पल्स को चेंज कर दिए। ऐसा नहीं कि सारे एग्जाम्पल्स को चेंज किए, ओनली 25-30 मेन एग्जाम्पल्स को मैं थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया, और उसको अपने अकॉर्डिंग जो है वो लिखा। सो आई फॉलो दिस अप्रोच, एंड आई थिंक इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई विल टेक दोज, और फिर मैं कुछ और चीज पे बात करूंगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज फील फ्री टू आस्क दोज क्वेश्चंस। थोड़ा 5-6 क्वेश्चंस ले लेते हैं, मुझे पानी चाहिए।
if you have any doubt on how to select optional, how to be motivated, how to what was my sources and how to write answers, ये 3-4 चीज में हो तो आप पूछ सकते हैं ना, how to write unique answers. See, UPSC will always give you more marks when you write unique answers. So इसमें मैं I want to give one example. One question come on, no, please listen it very carefully, because that separated my answers with others answers. जो मैं बोला कि मैं गूगल करता था, मैं सर के जो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करते थे. अगर आप सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ते हैं, सो देन ऑल्सो यू कैन गूगल. कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का ना 20 ऐसे एक पेजेस का एक पीडीएफ आ जाता है, वहां से आप एग्जाम्पल्स को पिक कर सकते हैं. और आप अगर हेल्थ का लिखेंगे, ट्रैवल, हेल्थ, केस स्टडी, आगे आप डाल दो एंथ्रोपोलॉजी या कुछ भी, सो आपको जर्नल्स मिल जाते हैं, साइंटिफिक जर्नल्स मिल जाते हैं. और मैं ये बहुत जल्दी डेवलप कर लिया कि हाउ टू गो थ्रू पेपर और उससे 10 मिनट में कैसे उसका कंटेंट निकालना है. ये मैं अपने फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस करते करते ये मैं डेवलप कर लिया. फिर मैं उसको गूगल करता था, 3-4 आर्टिकल्स खोलते थे और मैं तुरंत स्कैन करता था कौन सा इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, वो मेन स्ट्रीम भी होना चाहिए थोड़ा, और लोगों को पता भी हो किसने किया है, कहाँ पे किया, ये सारा चीज जो है मैं 4-5 लाइन में एक जगह लिख लिया. तो ये जो हेल्थ का मेरा केस स्टडी बना, जैसे कि मैं एक वेस्ट बंगाल में एक स्टडी हुआ था उस पर मैं किया था, तो ये मेरा यूनिक हो गया. सो इस तरीके से मैं किया. तो एक तो ये वैल्यू एडिशन हो गया. सेकंड, कि जब आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं, प्लीज डेवलप दैट माइंडसेट, यू आर आल्सो एंथ्रोपोलॉजिस्ट. सो मैं उसको उस एंगल से सोचता था कि आई एम ऑल्सो थिंकर. मैं पढ़ते पढ़ते थोड़ा तो एक ये डेवलप हुआ है. सो जब व्हेन द क्वेश्चन केम राइट अबाउट द सेटलमेंट पैटर्न इन 2020 एंड इट वाज इन 15 मार्कर क्वेश्चन, सो मैं सोचा कि यार इसमें तो 3 ही हम लोग पढ़े हैं. एक स्कैटर्ड सेटलमेंट होता है, एक क्लस्टर्ड होता है, एक स्कैटर्ड होता है, एक लीनियर सेटलमेंट होता है. I wrote all these 3 settlement pattern, and then I wrote as a student of anthropology, I also see 2 other settlement patterns in my own village. ऐसा करके लिखा. और चौथा सेटलमेंट पैटर्न मैं लिखा कि देयर इज अ डैम इन माय विलेज, और डैम के उस साइड में फार्मिंग होता है और डैम के इस साइड में पूरा सेटलमेंट है जो अर्दन डैम होते हैं. सो इस वजह से ये एक नया सेटलमेंट पैटर्न हो गया, वेयर द होल विलेज इज डिवाइडेड इनटू 50-50 पार्ट्स. इधर फार्मिंग हो रहा है और इधर ये हो रहा है. So that is because of the area requirement. ऐसा सेटलमेंट पैटर्न आया है कि यहाँ पे फ्लडिंग आती है और दूसरा कि यहाँ पे एग्रीकल्चरल कम्युनिटी है. फिर मैं 5वां एक सेटलमेंट पैटर्न लिखा कि बिकॉज जो ग्रुप्स थे वो हॉर्टिकल्चरलिस्ट ग्रुप हैं, वहाँ हॉर्टिकल्चर बहुत होता है मेरे एरिया में. सो हॉर्टिकल्चर को आप घर से बहुत दूर जो है वो फार्मिंग नहीं कर सकते, आपको घर के पास में रखना होता है बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस कि थेफ्ट वगैरह हो जाता है या कैटल वगैरह आप वो बर्बाद कर देते हैं. सो सेटलमेंट, एक नया सेटलमेंट पैटर्न आया, इसमें 4-5 घर होंगे, फिर फील्ड होगा, मतलब देयर विल बी 4-5 houses, and there will be an area where people will do horticulture, where they will grow fruits and vegetables. Likewise the entire village will be like that. So I draw the map also, and I wrote about this. So what my conclusion is ki the examiner will feel that you also have that kind of observation skills, and you will use this knowledge in administration as well. क्योंकि आप ये देखा एग्जामिनर को कि आई एम यूजिंग माय एंथ्रोपोलॉजी नॉलेज, एंथ्रोपोलॉजी इनसाइट to write my answers. So I try to innovate in my questions according to the question asked. Apart from those, I always used to write the administrative dimension. Remember this is an exam of administration. So in paper 2 तो आपको लिखना ही है कि in administration how you are going to use those use those anthropology concepts in administration. बट इन पेपर 1 ऑल्सो जहां भी मौका मिलता था आई यूज टू राइट. कभी कभी डायरेक्टली भी लिख देता था कि व्हेन एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आई कैन यूज दिस, वी कैन यूज दिस. आई नहीं तो वी कर लगा देता था कि इट कैन हेल्प इन दिस हैंडलिंग ऑफ राइट्स या ये तो ऐसे करके. एंड इन पेपर 2 आई यूज टू गो बीडी शर्मा और ये सब जो सिविल सर्वेंट है, बाद में वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट बन गए. आई यूज टू कोट दोज पीपल. बीजी शर्मा तो ठीक है सबको पता है, ओपी चौधरी को भी मैं कोट कर देता था. आई थिंक ही इज आईएएस ऑफिसर, ही वाज आईएएस ऑफिसर, वो रिजाइन कर दिए. छत्तीसगढ़ कैडर, दंतेवाड़ा मॉडल पीपल नो. सो उनको मैं कोट कर देता था बिकॉज ही वर्कड इन ट्राइबल एरियाज, इवन दो ही इज नॉट एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, बट
he used anthropological knowledge for the development of tribals. तो वहां पे उसको यूज कर दिया. तो इस टाइप से आप थोड़ा आंसर को यूनिक बना सकते हैं. एंड यू कैन यूज IAS ऑफिसर्स नेम्स जो एडमिनिस्ट्रेशन में उनका नेम्स यूज कर सकते हैं. सो माय अप्रोच वाज लाइक दिस. And in conclusion, in paper 2, paper 1, everywhere, I tried to include 3-4 thinkers, overall 3-4 thinkers in my answers. और conclusion में एक या दो तो डाल ही देता था. पेपर 2 में it's very easy. आपको 10 thinkers बस है main, and every thinker has said everything for Indian anthropology जो भी चीज पढ़ते हैं. So sir told कि whenever you are not sure कि कौन से thinker क्या है, you can use LP Vidyarthi's name, Professor LP Vidyarthi's name, because he has said he has contribution in everything. So उनका मैं नाम जो है वो उसको मैं यूज कर देता था. So इस टाइप से जो है आप भी जो है you can enrich your answer and you can make your answer unique. See, comments में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं. See, I will share all my GSK. I made short notes. I will share it on my Telegram channel. You can join that. Shubham Kumar Strategy and Notes for UPSC. और इसका जो ये है almost 25,000 people have joined it. और इसका जो लिंक है I will just say it to you कि इसका है https and t.me और shubhamkr_is. इसको आप दिखा सकते हैं क्या? इसको दिखा दीजिए. See, I was very busy these days and I was not able to share my notes. But the next priority would be to share my short notes. मेरे short notes थे और I gave 5 hours lecture on Vision IAS. I was involved in their classroom program. So मैं वहाँ पे 5 घंटे में सारा strategy share किया हूँ. And it will come in 2-3 days. और बहुत डिटेल में किया हूँ और वो उसमें मैं अपने notes, answer writing style सारा चीज बताया हूँ. Because I think the biggest strength that I had was answer writing, or it came from everyone has their strength and weakness. So इसमें क्या हुआ था कि during my school days only I used to write social science questions in point wise. मैं geography, society, history के questions जो है वो point wise लिखता था 9-10 से. So it helped me a little bit. और अगर आपका वैसा नहीं है, so it is very easy to develop anything, अगर आप उसमें consistently effort डालते हैं with over a period of time. If you write answer today and if you compare your answer, if you're writing it daily, if you compare the answer on first day that you have written to the answer that you have written on 15th day, within 15 days it can make a lot of difference. So whenever I used to be अंडर कॉन्फिडेंट, थोड़ा नर्वस कि मेरा प्रिपरेशन क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करता था, मैं 15 दिन का एक टारगेट रखता था कि 15 दिन में मैं बहुत पढ़ूंगा एंड देन आई विल सी अ डिफरेंस. और बिलीव मी, इन 15 days यू कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, इधर बी इट एंथ्रोपोलॉजी और बी इट GS. अगर आप 15 दिन बहुत कस के पढ़ते हैं और आंसर राइटिंग करते हैं, तो मैं ऐसा करता था. व्हेनेवर आई यूज्ड टू फील डाउन, आई यूज्ड टू रीड फॉर 15 days स्ट्रेट और फिर प्रैक्टिस करता था. देन आई यूज्ड टू कंपेयर what I wrote in first day and what I wrote in 15th day, and it used to give me a lot of confidence and used to boost my self belief. I will come to GS first, but whatever I have discussed 3-4 topics, if you have any doubt, you are most welcome to ask questions. There are a lot of confusion कि कहाँ से कोचिंग क्या नहीं किया, क्या हुआ, क्या हेल्प मिला नहीं मिला. See, in 2019 I must say I was very underconfident. I used to be very underconfident. So I spoke with Ved sir, and sir only suggested me to give lot of mock interviews, because Sachin Gupta sir का भी ऐसा ही कुछ issue था and he also gave lot of mock interviews. So in my second attempt I gave around 12 mock interviews. So सारे coaching institute वाले they have this trick that for interview they will make everything for free of cost. So इंटरव्यू फ्री होते हैं एंड पीपल, अगर आप राजेंद्र नगर में रहते हैं और मैं अंडर कॉन्फिडेंट था, आई डिड नॉट सिट फॉर प्लेसमेंट, सो आई अपीयर्ड फॉर ऑल दोज मॉक इंटरव्यूज एंड नाउ दे विल क्लेम कि मैं उनका स्टूडेंट हूँ. प्लीज डू नॉट बिलीव दैट. आई डिड नॉट डू
कोचिंग फ्रॉम देम. आई डिड क्लासरूम प्रोग्राम फ्रॉम विजन आईएएस, और वहां पे भी मैं क्लियरली मेंशन किया हूँ कि दे टीच बेसिक थिंग्स एंड दैट यू कैन कवर थ्रू, इफ यू आर एबल टू रीड बेसिक बुक्स एनसीईआरटीज, यू कैन कवर थ्रू दोज. इफ यू आर नॉट, एंड बिकॉज आई वॉज कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, और 3 साल तक ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं था कॉलेज में, बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स आई वॉज इन्वॉल्व देयर फॉर अदर इन अदर एरियाज. सो उस वजह से आई ज्वाइन कोचिंग कि वहाँ पे कोचिंग का एक मिल जाएगा, एक बेस मिल जाएगा. एंड इन द इंटायर 9 months ड्यूरेशन आई अटेंडेड ओनली 6 months. अपने अपने इससे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको मैं छोड़ दिया. लाइक फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हिस्ट्री आई डिड नॉट वॉच वीडियोस विजन आईएएस के. सो कुछ कुछ अपने मैं छोड़ दिया और मैं कुछ अपने से कर लिया. सो फ्रॉम देयर आई डिड क्लासरूम. एंड फॉर टेस्ट सीरीज, जीएस के लिए टेस्ट सीरीज के लिए आई ज्वाइंड विजन आईएएस का फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस एज वेल. 2020 में प्रीलिम्स, 2019 में एंड 2020 में प्रीलिम्स का, बिकॉज आई थॉट कि लेट्स सेव मनी, 30,000 या 20,000 रुपये मैं दे के टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करूंगा. सो इसके लिए आप मार्केट से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो टेस्ट सीरीज में लेता था और रूम पे बैठ के लिखता था. एंड फॉर 2019 आई ज्वाइन मेंस टेस्ट सीरीज, क्योंकि आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाके लिखते हैं तो थोड़ा एक हेल्प मिल जाता है. सो वो ज्वाइन किया 20 टेस्ट का. एंड 2020 में मैं रूम पे बैठ के लिखा. कोविड का टाइम था तो 2020 में क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके एक फ्रेंड का ही क्लियर्ड प्रीलिम्स, ही वाज नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स, सो मैं विजन आईएएस के आंसर्स लिखा और उसके पोर्टल से अपलोड कर दिया था. सो ऑल दीज आंसर्स सीट मॉक पेपर्स का मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हूँ. और फिर एंथ्रोपोलॉजी के लिए मैं सर का जो है वो क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन किया और सर का टेस्ट भी लिखा, और इसके अलावा L2A कोचिंग का जो है टेस्ट सीरीज बस में लिखा. सो इसमें ये है कि टेस्ट सीरीज से जो फायदा क्या होता है कि मतलब जो ज्यादा फायदा होता है वो कमेंट्स और ये सब से नहीं होता है. वो फायदा होता है आपका सेल्फ एनालिसिस, कि आप इतने घंटे में कितना लिख पा रहे हैं. अब बाकी अगर आप डेली आंसर राइटिंग करते हैं, आप जो है मैं बीच बीच में जो है सर से रिव्यू कराता था अपने आंसर्स को, लेकिन मैं इतना कंटिन्यूअस नहीं था, इतना कंसिस्टेंट नहीं था आंसर लिखने में शुरुआत में. बट इन 2019 का मेंस के दौरान सर ने एक मेंस के लिए अलग बैच बनाया था, तो उसमें फिर मैं आकर के जो है क्वेश्चंस लिखता था और गाइडेंस लेता था. सो एक बार जब गाइडेंस मिल गया और एक बार मैं अपना अप्रोच डेवलप कर लिया, दैट आई हैव डिस्कस, कि मैं सर का जो अप्रोच था प्लस मेरा जो पॉइंट वाला था उसको मिला करके जब मैं अप्रोच अपना डेवलप कर लिया, तो फिर जो है आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑन दोज लाइन्स. तो फिर 2020 में मैं उतने आंसर्स जो है मैं नहीं लिखा. आई फोकस ऑन मोर ऑन कवरिंग द सिलेबस, इंटायर सिलेबस, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो जैसे टॉपिक 7 जो है लैंग्वेज और ये सब वो छोड़ देते हैं. बट आई कवर्ड दोज टॉपिक्स. और इसमें फायदा हुआ कि मेन एग्जामिनेशन में देयर वाज वन क्वेश्चन जिसमें 2 क्वेश्चन सबको आता था लेकिन एक लैंग्वेज का क्वेश्चन था. सो पीपल डिड नॉट अटेम्प्ट दोज वो क्वेश्चन, but I was very comfortable in attempting that question because मैं language पढ़ लिया था. So if you cover the entire syllabus, you will have that leeway in the examination hall to select questions based on your strength, और फिर आपका selection अच्छा होगा. So इस वजह से I will suggest cover the entire syllabus, try to remember things, try to scribble, or do not run for many sources. Try to cover the syllabus rather than the books or anything, and खुद का अप्रोच बनाएं, एंड व्हाटएवर द वैल्यू एडिशन दैट आई हैव डिस्कस्ड, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दैट.